السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں میں صدقۃ الفطر اور نماز عید پر کچھ سوالات اور ان کے جوابات رکھوں گا۔ سوالات اس لیے تاکہ باتیں کھلتی چلی جائیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے سوالات رکھتا ہوں، اس کے بعد ان کے جوابات دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال، صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ یہ واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ دوسرا سوال ہے، صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے؟ کیوں صدقۃ الفطر نکالا جائے؟ تیسرا سوال ہے، صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہے؟ ماپ، وزن۔ چوتھا سوال ہے، صدقۃ الفطر میں کون سے غلہ جات دیے جائیں گے؟ پانچواں سوال ہے، صدقۃ الفطر میں کیا نقدی نکالنا جائز ہے؟ چھٹا سوال ہے، صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے؟ اس کے وجوب کا وقت کیا ہے؟ ساتواں سوال ہے، صدقۃ الفطر کے واجب ہونے سے پہلے ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ایک دو دن پہلے۔ آٹھواں سوال ہے، صدقۃ الفطر ادا کرنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ نواں سوال ہے، جو نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر جس نے نہیں دیا، بعد میں دیا، اس کا کیا حکم ہے؟ دسواں سوال ہے، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے کیا بالغ ہونا اور صاحب نصاب ہونا شرط ہے؟ 11واں سوال ہے، صدقۃ الفطر کے حقدار کون ہیں؟ کن کو دیا جائے؟ 12واں سوال ہے، صدقۃ الفطر کس جگہ ادا کیا جائے؟ کیا اسے ضرورت پر دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے؟ 12واں سوال ہے، تکبیرات عید کب سے کب تک؟ 13واں سوال ہے۔ سوال نمبر 14، عید کی نماز کا وقت افضل کیا ہے؟ سوال نمبر 15، اگر زوال کے بعد چاند کی خبر ملے تو کیا کریں گے؟ سوال نمبر 16، نماز عید ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سوال نمبر 17، عید کی نماز پڑھ کر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو آئیے ان سوالوں کے جوابات ہم سنتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، زندگی کے ایام بڑی سرعت کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ کل تک جس رمضان کا ہم انتظار کر رہے تھے، جس کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے، آج اس رمضان کی 22 تاریخ ہے اور 7 یا 8 دن کے بعد یہ مہینہ ہم سے نکل جائے گا بڑی تیزی کے ساتھ۔ اس لیے ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم محنت کر لیں، خاص کر اس کی یہ آخری راتیں بڑی قیمتی ہیں، جن میں لیلۃ القدر ہے، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینہ یعنی 83 سال 4 مہینے کی برابر ہے، یعنی 30,415 راتوں کے برابر۔ میرے بھائیوں، اس ماہ کے اختتام پر ایک مسئلہ اور ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ جہاں رمضان کا مہینہ ختم ہوا، رمضان کی آخری تاریخ گئی،
सूरज डूबा, चांद निकला, वहीं पर सदक़तुल फित्र की मशरूइयत का वक्त आता है, जो रोज़ेदार के लिए लग़वियात और फाहशगोई से पाकी का ज़रिया और मसाकीन के लिए खुराक है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईरिन अलल अब्दि वल हुर्रि वल ज़करि वल उन्सा वस्सगीरि वल कबीरि मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूजिन नास इलल मुसल्ला लिस्सलात, रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फित्र को फ़र्ज करार दिया है, एक सा तमर, एक सा जौ, जो हर मुसलमान आज़ाद, ग़ुलाम, मर्द, औरत और छोटे बड़े पर फ़र्ज है। इसके सिलसिले में आपका हुक्म है कि लोगों के ईदगाह जाने से कब्ल अदा कर दिया जाए। इस हदीस से हमें 5 बातें मालूम होती हैं, 5 मसाइल का इल्म होता है। नंबर 1, सदक़तुल फित्र वाजिब है। नंबर 2, सदक़तुल की फित्र की मिक़दार 1 सा है, यानी 2.5 किलो, जिसे कुछ लोगों ने 3 किलो भी कहा। नंबर 3, सदका में नकदी नहीं बल्कि गल्ला दिया जाए। नंबर 4, इसमें निसाब की शर्त नहीं है बल्कि हर मुसलमान और नाबालिग होने की शर्त है, हर मुसलमान छोटे बड़े, औरत, मर्द, आज़ाद और ग़ुलाम पर फ़र्ज है। नंबर 5, ईद की नमाज से पहले निकालना। अब हम आते हैं सदक़तुल फित्र का हुक्म क्या है। सदक़तुल फित्र मेरे भाइयों मुस्तहब और सुन्नत नहीं बल्कि वाजिब है। वजूब की दलील क्या है? अभी जो मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी है बुखारी शरीफ की, उसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र को फ़र्ज करार दिया है। फ़र्ज करार दिया है से साबित होता है कि ये ज़कातुल फित्र वाजिब है। दूसरा सवाल, सदक़तुल फित्र की हिकमत क्या है, क्यों ये निकाला जाए? उसी हदीस में बयान किया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़स व तुअमतन लिलमसाकीन, रवाहु इब्न माजा व हसनुल अलबानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र को फ़र्ज करार दिया। हिकमत क्या है? रोज़ेदार के लिए लग़वियात और फाहशगोई से, यानी रोजे की हालत में जो छोटी मोटी गलतियां हुई हैं उनसे पाकी का जरिया है और फकरा और मसाकिन के लिए खुराक का इंतजाम है। तीसरा सवाल है, सदक़तुल फित्र की मिक़दार क्या हो? हदीस ऊपर गुजर चुकी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बुखारी वाली हदीस, जिसमें है साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईरिन, यानी 1 सा तमर हो, 1 सा जो भी गल्ला हो, 1 सा लोग खा रहे हैं वो अदा करें। हर सा से अहले मदीना का सा मुराद है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की नाप को मोतबर करार दिया, जैसा कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला की हदीस में है कि अल मिकियाल अला मिकियाल अहल मदीना, नाप मदीना वालों की नाप है, वल वज़न अला वज़न अहल मक्का, और वज़न मक्का वालों का वज़न है। सुनन नसई व तस्हीह अलबानी। तो तकरीबन 2.5 किलो 1 सा की मिक़दार है, 2.5 किलो गल्ला दिया जाए। चौथा सवाल है, सदक़तुल फित्र में कौन से गल्ला दान दिए जाए? सदक़तुल फित्र में आम खाने वाली ग़िज़ा देना वाजिब है, जो आम तौर पर हम जो खाना खाते हैं, जैसे खजूर है, यहाँ के लोगों की ग़िज़ा ही खजूर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ना लोग कुछ और खाने लगे हैं, पहले खजूर और दूध, गेहूं है, चावल वगैरह। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, कुन्ना नुख़रजु फ़ी अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल फित्र साअन मिन तआम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईद के दिन 1 सा खाना सदका फरमाते थे, और हमारा खाना उन दिनों क्या था? वकान तआमुना अश-शईर वज़्ज़बीब वल-इक़्त वत-तमर,
हमारा खाना उन दिनों जौ था, किशमिश था, पनीर था और खजूर था। तो जो भी आमतौर पर जो गल्ला खाया जाता है उसे एक सा अदा किया जाएगा, 2.5 किलो या बाज़ कौल के मुताबिक 3 किलो। 5वां सवाल है, कुछ लोग गल्ला नहीं देते हैं बल्कि नकदी देते हैं, रुपया पैसा। तो इसका जवाब यह है कि अक्सर उलमा की तहकीक के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक, साहबे किराम के अमल के मुताबिक सदक़तुल फित्र में नकदी यानी पैसा निकालना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इबादत तौक़ीफ़ी है और नबी पाक से और आपके सहाबा से किसी में से उसकी कीमत या नकदी निकालना साबित नहीं है। इसलिए क़तअन रुपया न निकाला जाए, हर हाल में गल्ला ही निकाला जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मन अहदता फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। सही मुस्लिम, जो शख्स हमारे इस दीन में कोई नई बात ईजाद करे तो वो मरदूद है, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। और हाल ये है कि लोगों को पैसा दो तो झट से रख लेते हैं, और गल्ला दोगे तो वही आदमी लेगा जिसको सख्त जरूरत हो, इसलिए भी गल्ला ही देना चाहिए। छठा सवाल है, ये फितरा कब वाजिब हो जाता है? आप एक आदमी 15 रमजान, 16 रमजान, 18 रमजान को मर गया, क्या उसके ऊपर भी सदक़तुल फित्र वाजिब है? नहीं। फितराने के वजूब का वक्त जो है रमजान मुबारक की आखिरी तारीख है, आखिरी दिन का सूरज गुरूब हुआ और शव्वाल का चांद निकला, उस वक्त आपके ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब हो जाता है। लिहाजा जिसने भी सूरज गुरूब होने से पहले शादी की है वो अपनी बीवी का भी सदका देगा। जिसके यहाँ रमजान का सूरज गुरूब होने और चांद निकलने से पहले बच्चे की विलादत हुई है उस बच्चे का सदका देगा। लेकिन अगर गुरूब शम्स के बाद, चांद निकलने के बाद किसी ने शादी की, बच्चा पैदा हुआ, तो उस बच्चे पर सदक़तुल फित्र वाजिब नहीं है। 7वां सवाल है, सदक़तुल फित्र के वाजिब होने से पहले अगर कोई अदा कर दे, 10 रमजान, 15 रमजान, 20 रमजान, तो अफजल ये है कि ज़कातुल फित्र नमाज ईद से कबल अदा की जाए और रमजान का सूरज डूबने के बाद। अगर ईद के दिन से 1 या 2 दिन पहले भी अदा कर दी जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले कतअन इसका कोई सबूत नहीं है। 1-2 दिन पहले इसका सबूत है, साहबे किराम ऐसा करते थे। चुनाचे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम नाफे से रिवायत है कि उन्होंने सदक़तुल फित्र के बारे में फरमाया कि लोग ईद से 1 या 2 दिन पहले सदक़तुल फित्र अदा करते थे। और अबू दाऊद में नाफे से सही सनद के साथ मरवी है, फ़कान इब्न उमर युअद्दीहा क़ब्ल ज़ालिका बिल यौम वल यौमैन। अब्दुल्लाह इब्न उमर का मामूल था कि वो ज़कातुल फित्र ईद से 1 या 2 दिन पहले अदा कर देते थे। 8वां सवाल, ज़कातुल फित्र अदा करने का आखिरी वक्त क्या है? ईद की तरफ निकलने से पहले पहले हर हाल में ज़कातुल फित्र अदा करना चाहिए, वही उसका आखिरी वक्त है। उसके बाद जो अदा करेगा उसका ज़कातुल फित्र अदा नहीं होगा, वो एक आम सदका होगा। ज़कातुल फित्र ना अदा करने का गुनहगार होगा। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न की हदीस में है, वह अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूज अन्नास लिस्सलाह, लोगों के ईदगाह जाने से कबले ये सदक़तुल फित्र अदा कर दिया जाए। 9वां सवाल, जो नमाज ईद से पहले सदका नहीं दिया, बाद में दिया, उसका क्या हुक्म है? सुनन इब्न माजा, अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन अद्दाहा क़ब्ल सलात फहिय ज़कातुन मक़बूला, जिसने ईदगाह जाने से पहले ज़कातुल फित्र अदा कर दी वो एक मकबूल सदक़तुल फित्र है। वमन अद्दाहा बअद सलात फहिय सदक़तुन मिन सदक़ात, और जो नमाज के बाद देगा वो सदक़तुल फित्र नहीं माना जाएगा, आम सदका है। 10वां सवाल, सदक़तुल फित्र के अदा करने के लिए क्या बालिग होना और मालदार होना, साहब निसाब यानी ज़कात वाला होना शर्त है? नहीं, सदक़तुल फित्र हर मुसलमान पर वाजिब है, बालिग हो, नाबालिग हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, गुलाम हो, जिनके पास भी एक दिन एक रात से ज़ायद और अहलो अयाल के लिए खाना मौजूद है, उनको फितरा अदा करना है। फिर एक मुसलमान सदक़तुल फित्र अपनी तरफ से उन तमाम अफराद की तरफ से अदा करेगा
जिनकी कफालत है अलल अब्द वल हुर्र वल ज़कर वल उन्सा वल सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन रवाहुल बुखारी। तमाम की तरफ से जिनकी वो कफालत करता है उनकी तरफ से वो सदक़ुल फित्र अदा करेगा। निसाब शर्त नहीं है, एक दिन भर खाने पीने का उससे ज़ायद का सदका मौजूद है वो अदा करेगा, दूसरे लोगों की तरफ से उसको सदका मिल जाएगा। कई लोग कहते फिर दिया किसको जाए, हर उस आदमी को दिया जाए जो फकीर और मिस्कीन है, आप दीजिए उसको, वो अपना अदा करेगा, कोई मुश्किल नहीं है। 11वां सवाल, सदक़तुल फित्र के हकदार कौन है? इस सदका के मुस्तहिक मुस्लिम फ़क़रा और मसाकीन है। इब्न अब्बास की मज़कूरा हदीस के मुताबिक जिसमें जिक्र है कि यह सदका मसाकीन के लिए खुराक है, तुअमतल लिल मसाकीन, मसाकीन के लिए खुराक है, वो तोहरतल लिस्साइम और रोजेदार के लिए पाकी है। ये सदका फ़क़रा मसाकीन का हक है, इनके सिवा दूसरों को देना बड़ी गलती है। बाज़ लोग इसके आदी हो गए हैं कि अपने अजीज़ व क़ारिब और पड़ोसियों को ऐसे आसपास में तबादले के तौर पर दे देते हैं, वो उनको दे दिया, वो उनको दे दिया। नहीं, गरीब और मिस्कीन को ढूंढ करके दीजिए, अगरचे वो उसके मुस्तहिक नहीं है तो ना दीजिए। 12वां सवाल, सदक़तुल फित्र किस जगह अदा किया जाए? आदमी जहां है वहीं अदा करे या जरूरत पर दूसरी जगह भी भेज सकता है? यह सदका हकीकत में वहां के फकरा को दिया जाए जहां सदका निकालने वाला है, लेकिन अगर वहां उतने हाजतमंद नहीं है, उससे ज्यादा दूसरी जगह पर लोग भूख से मर रहे हैं, परेशान हैं, और यहाँ लोग पेट भरे हैं और नहीं समझ में आ रहा है किसको दिया जाए, तो राजिह कौल के मुताबिक हर उस दूसरी जगह पर जहां सख्त जरूरत है सदक़े फित्र को मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि असल जवाज है, दूसरी जगह मुंतकिल करने की हुर्मत पर कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है कि हम कह दें कि नहीं मुंतकिल कर सकते। तो ये रही चंद बातें सदक़तुल फित्र के बारे में। अगर मजीद कोई सवाल किसी के पास हो तो कमेंट में लिखें। इन 12 सवालों के अलावा सदक़तुल फित्र के बारे में आपके पास कोई और सवाल है तो कमेंट में लिखें। 13वां सवाल है ईदैन की तकबीरात से मुतालिक। ईद की रात से यानी जब से ईद का चाँद निकलता है तब से तकबीरात पुकारनी है ईदगाह पहुंचने तक, और ईद की नमाज शुरू होने से पहले पहले तक तकबीरात कही जाएंगी, ये सुन्नत है। अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज के लिए जब निकलते बुलंद आवाज से तकबीर व तहलील कहते, और नाफे रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर जब ईद उल फित्र ईद उल अज़हा के लिए निकलते तो बुलंद आवाज से तकबीर कहते यहाँ तक कि ईदगाह पहुंच जाते, फिर तकबीर कहते यहाँ तक कि इमाम मुसल्ले पर आ जाता, फिर इमाम के साथ भी तकबीर कहते। तकबीरात के जो कलिमात हैं वो है जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से साबित है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी तरीके से अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला भी साबित है। 14वां सवाल है ईदैन की नमाज का वक्त क्या है? ईद की नमाज का वक्त सूरज निकलने के बाद से शुरू होता है, एक नेजा के बराबर बुलंद हो, थोड़ा सा बुलंद हो जाए, यानी निकलने के 10-15 मिनट के बाद, सूरज निकलने के 10-15 मिनट बाद से लेकर के ये वक्त शुरू होता है और जोहर से पहले पहले तक रहता है। सूरज यानी इशराक का जो वक्त है ना, वही ईद की नमाज का वक्त है, और जवाल शम्स तक रहता है। जवाल हो गया तो वहां से जोहर शुरू हो जाता है, सूरज ज़ाहिर होने तक वहां तक इसका आखिरी वक्त है ईद की नमाज का। अगर ज़ाहिर होने से पहले पहले तक चाँद की खबर मिलती है तो आदमी को ईद की नमाज पढ़ लेनी चाहिए। 15वां सवाल है अगर किसी ने चाँद नहीं देखा, दूसरे दिन पहली शव्वाल को खबर मिली कि साहब कल चाँद देखा गया है पूरे सबूत के साथ, तो अगर जवाल से पहले पहले खबर मिल गई है तो नमाज पढ़ ले, लेकिन अगर जवाल के बाद खबर मिली है तो रोजा तोड़ दे और 2 शव्वाल को ईद की नमाज पढ़ी जाए। जैसा कि सुनन इब्न माजा की हदीस में इसका सबूत है, जिसको अल्लामा अलबानी ने इरवाल गलील में सही कहा है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں غم علینا ہلال شوال فاصبحنا صیاما، شوال کے آخری دن جب شوال کے جب چاند نکلنا ہوا تو اس وقت بدلی ہو گئی، تو ہم لوگوں نے 30 پورا کرنے کے چکر میں اگلا دن بھی روزہ رکھ لیا۔ چنانچہ دن کے آخری حصے میں خبر ملی، کچھ سوار آئے، انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا ہے، تو چونکہ وقت نکل چکا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا ان یفطروا یومہم، کہ وہ اس دن افطار کر لیں، روزہ توڑ دیں، وَأَن يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ، اور انشاءاللہ کل عید کی نماز پڑھیں گے۔ نماز عید کا طریقہ، نماز عید بلا اذان اور بلا اقامت ادا کی جائے گی۔ نماز عید 2 رکعت ہے جو جہری پڑھی جائے گی۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد 7 تکبیرات زائد کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر 5 تکبیرات زائد کہی جائیں گی۔ آدمی اپنے اپنی جگہوں پر، آپ لوگ ہیں، آج اب کی پہلی بار آپ کو عید کی نماز خود سے پڑھنی ہے، آپ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد عید کی نماز کی نیت سے مصلی پر کھڑے ہو جائیں، بلا اذان و اقامت، تکبیر پہلے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں، چاہیں تو ابھی دعائے ثنا پڑھ لیں، چاہے بعد میں پڑھیں، اس کے بعد 5 تکبیرات زائد پھر سے کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 تکبیرات، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات، کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ دعائے ثنا پڑھیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں، اس کے بعد رکوع میں جائیں، سجدہ کریں، سجدے سے اٹھیں کھڑے ہو کر کے، پھر 5 تکبیرات کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 5 تکبیرات ہو گئی، ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو گئی، غلطی سے کہیں تو اٹھنے کے بعد 5 تکبیر کہنی، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد سنت یہ ہے کہ سورہ غاشیہ پڑھیں، پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کے عید کی نماز ہو گئی۔ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ نہیں یاد ہے تو کوئی بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ 16واں سوال ہے عید کی نماز پڑھ کر کے ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کا۔ عید کی نماز پڑھ کر کے جو لوگ اپنے کمرے ہیں وہ اپنے کمرے میں رہیں، اور جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ مبارکبادی دیتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے سکتے ہیں کہ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم کے ذریعے عید کی مبارکبادی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن ترکمانی نے کہا کہ اس باب میں ایک جید حدیث موجود ہے جو محمد بن زیاد کی روایت سے ہے، قال كنت مع ابی امامہ الباہلی، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو امامہ باہلی کے ساتھ تھا، اور ان کے علاوہ اور بھی دوسرے اصحاب رسول کے ساتھ، فکانوا اذا رجعوا، جب وہ لوگ عید کی نماز پڑھ کر لوٹتے، یقول بعضهم لبعض، تو ایک دوسرے کو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنک، کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ قال احمد بن حنبل اسنادہ جید، امام احمد کہتے ہیں کہ اس کی اسناد جید ہے۔ تو عید کی مبارکبادی دینا ایک دوسرے کو درست ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے آخری ایام، خاص کر رمضان کی آخری راتیں ہمارے لیے جنت میں داخلے کا اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ صدقۃ الفطر کے مسائل کو ہمیں سمجھ کر کے اسے غریبوں میں پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ اس بیماری کا خاتمہ فرما۔ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی اوپر آئی ہوئی ہر طرح کی مظلومیت، پریشانی اور مشکلات کا خاتمہ فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔